Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Tanvir Iqbal, teacher Boys High School, Chattigam. Dear students of class 7th, we are continuing our chapter Food Production and Management. As I have already told you, this is the longest, lengthiest, but most interesting and most useful and most day-to-day activity-based chapter in this textbook provided by NCERT. And today our topic would be manuring and irrigation. But let me remind you, what did we study yesterday? We studied we have to select right kind of soil, we have to select good quality seeds, we have to give it required amount of water, we have to protect it from weeds and pests, and proper implements are to be used to obtain a good quality crop. Yesterday we ended our topic on sowing. We do sowing by two techniques. One is by using broadcasting method, which we daily use in our fields. We spread the seeds by our hands directly. Guys, atsad biol se chakan atsad biol. So broadcasting. Kya go? Broadcasting. Yat pe tat pe khudai se nai. So broadcasting. That is the broadcasting way of spreading the seeds. And second technique is by using seed drills. जो हमारे पास हल होता है ना, उसके ऊपर लगा हुआ होता है वो टूर जैसा, और उसके नीचे एक पाइप जैसी होती है. जो ही वो आगे आगे चलता है, ये बीज खुद ब खुद ज़मीन में बो पाता है. बहुत से किस्म के सीड ड्रिल्स होते हैं. जैसा ज़मीन हो वैसा सीड ड्रिल्स होते हैं, और जैसा सीड हो, जिस किस्म का फसल हो, क्रॉप लगाना हो, उस हिसाब से वो सीड ज़मीन में पड़ जाता है. दीज आर सीड ड्रिल्स. यू कैन सी इन वीडियोज़, scientific videos, or you can see the pictures from net or from textbook. So उसके बाद हम पढ़ेंगे, जब सीड्स हमने लगाए तो सीडलिंग ऐसे सीड लगाए. दूसरा तरीका है एक साथ सीड लगाने का. फिर वहाँ से नर्सरी उगती है, फिर हम उसमें से उठाते हैं, तो फिर वो कहीं 2-3 प्लांट्स एक साथ लगाते हैं दूर, उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग. जैसा हम आजकल करते थे जब हम पैडी लगाते हैं. दाने लिस लगावान गड ब्योल अक्सी जाय वावान, तत खसान थल, तत पारा, पत लागान 2-3 कुल दूर. Why we plant them at a distance? That is the main question. Why we plant them at a distance? Why is it not feasible to keep the nursery as such and to harvest the crop there? We have already read in chapter 1, nutrition in plants, that plants need excess sunlight, suitable sunlight. Plants need water. Plants have to grow. तमन branches आसान, तमन grow आसान करन side. इसीलिए to receive good quantity of sunlight so as to do the process of photosynthesis, food making, they should be planted at a distance what is provided by the scientists, what is provided by the experts. That's why we do transplanting. Us थल चार्ज लागान सह करान transplanting. अगर कुछ गैर गसान दबा गैरस मजा खसो ना कुल कहीं, उसमें वो नहीं उगेगा. उसको दूर लगाना. चाहे हम एप्पल प्लांट लगाएंगे, चाहे हम ईरे लगाएंगे, चाहे हम फ्रेश पॉपुलर लगाएंगे, चाहे और भी कोई प्लांट हो, हम बोला जाता है कि दूर लगे. कनालस कस कुछ वातन यह वोनमुत हार्टिकल्चर वालों, फलन कुछ वातन इत कनाल अत कम से कम 10 मीटर 15 मीटर डिस्टेंस आसन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्लांट. एप्पल ट्री अगर डिलीशन हो तेल हेको थोड़ा नज़दीक लगे, अमेरिकन हो तेल दूर लगावन. If it is high density apple orchard, you can plant it just 20-50 centimeters apart, depending on the type of plant. Bulgaria plant अगर है तो मीटर 2-3-4 मीटर दूर लगा सकते हैं. But if it is the delicious, if it is the amberry, if it is the American, if it is dilruba, if it is any sort of type which we plant in our fields, it should be 20 meters, 10 meters, 20 meters. Horticulture options have already given us how many plants can accommodate in a canal or in an acre or in a hectare. So continuing on today, we have to see manures and we have to give a touch of irrigation. जब हमने प्लांट लगाए तो सॉइल तो तैयार किया, अच्छी तरह से तैयार किया, उसमें से निकाले वो घास फूस बाकी. अब हमने सीड भी लगाया, प्लांट उगने लगी. जब प्लांट उगे तो हमें उसको मैन्योर देना है, खाद देनी है. तो 2 किस्म के खाद हम देते हैं, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर. फ़र्क क्या है?
मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक केमिकल्स, वो होते हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स, यानी ऑर्गेनिक लिविंग होते हैं। वो क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स के पार्ट्स होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। फर्टिलाइजर्स होते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल, इनऑर्गेनिक chemicals. So manures are organic chemicals which supply all the elements a plant needs in small quantities. We have already read in chapter first nutrition in plant that what sort of chemicals, what sort of nutrients plant needs to do photosynthesis and to use their daily lives. So क्या क्या ज़रूरत होता है? छोटे छोटे जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट ज़रूरत होते हैं। नाइट्रोजन, पोटाश होता है ज़रूरत, कैल्शियम होता है ज़रूरत, फास्फोरस होता है ज़रूरत, बाकी बाकी ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, और वाटर पता ही है तो सलाइड पता ही है। ऐसे ऐसे जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स उसको ज़रूरत होते हैं, यूरिया होता है, अमोनिया, बाकी चीज़। तो दो किस्म हम देते हैं, मैन्योर्स और फर्टिलाइजर। मैन्योर्स ऑर्गेनिक केमिकल, बाकी तो आपको पता ही है, ये फर्टिलिटी बढ़ाता है, ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, इसकी ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है, तो और ये बढ़ाता है। जिस किस्म के हिसाब से सॉइल हो उसी किस्म के हिसाब से हम मैन्योर्स भी देते हैं। सैंड सॉइल हो, क्ले सॉइल हो, बाकी सॉइल हो, लेटेराइट सॉइल होती है एक, हिंदुस्तान में रेड सॉइल होती है एक, कॉटन जिसमें लगाते हैं, बाकी बाकी चीज़ ऐसे हिसाब से, तो उस किस्म के हिसाब से हमें मैन्योर्स भी देने हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं ज़मीन में। तो खास खास किस्म क्या है? फार्म यार्ड मैन्योर, FYM, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, सी मैन्योर, पोल्ट्री मैन्योर, 5 किस्म है। फार्म यार्ड मैन्योर होते हैं डेली, जो हर एक ज़मींदार के पास होते हैं। रेमिनेंट्स ऑफ सिट्रा, घास के टुकड़े या घास खुद, पत्तों के टुकड़े, पत्ते, और एक्सक्रीट ऑफ कैटल, सब कुछ जो मिला के होता है। जब हम यहाँ एक्सक्रीट होता है वो किसी ढेर में रख दिए तो वो ये हो गया, डिकम्पोज हो गया, तो हो गया फार्म यार्ड मैन्योर। तब लस तो सुबह यह बन पगा लस आता बन पा। उसके बाद हो गया ग्रीन मैन्योर। ये यहाँ पे ज़्यादा ये फैशन नहीं है, हिंदुस्तान में है। ग्रीन मैन्योर है, हम कोई क्रॉप लगाते हैं, वो होते हैं लिग्यूमिनस प्लांट। लिग्यूमिनस प्लांट्स हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जो नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, ऐसे हिसाब से जो होते हैं, जो वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ जाए, जैसे इस पर थल से आसान, दाई थल से आसान, जब इतना वो होता है तो हम एक और बार उसमें प्लोइंग करते हैं, टर्निंग अप करते हैं, वायाच। क्या करा? वायाच, यानी वही प्लांट्स हम ज़मीन में फिर ऐड करते हैं ताकि इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए, ताकि इसकी फर्टिलिटी बढ़ जाए। उस हिसाब से वो फिजिकल स्ट्रक्चर भी उसका इम्प्रूव होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन मैन्योरिंग। कौन कौन से क्रॉप्स हम लगाते हैं? क्लस्टर बीन्स होते हैं, काउपी होती है, हॉर्स ग्राम होता है, ये होते हैं ग्रीन मिट्टी थल पे गसान ट्रैक्टर आना दान आया तो यह जुरावान अत मज क्या जुरावान, यमो जमीन मज ती न्यूट्रंट्स कोड़मत, न्यूट्रंट रिच प्लांट्स, बे गसान जमीन मज ऐड, तो जमीन गसान वारियाह फर्टाइल ज़मीन क्या फर्टाइल ज़मीन। उसके बाद तीसरा जो है कंपोस्ट है। कंपोस्ट विच वी यूज डेली इन आवर फील्ड्स डे टू डे। पह गुह थो साइडस, गुह चारवाई करान गुह, तथ सह घस पी तना पंतुल लस वस थोड़ा ये सह दोदरान अत पे कुलन त्रावान, दैट इज कंपोस्ट। दैट इज कंपोस्ट। जो भी रिफ्यूज होता है हमारे पास वो है कंपोस्ट। रुसानत बत फलिया बाकी चीज सारी पे थवान दोदरा, यु त्रावान कुछ बागस वागस, वारिया सबसे बेहतर होता है, ये सबसे बेस्ट होता है। यहाँ हमारे कश्मीर में जो है सबसे बेस्ट है ये ग्रीन मैन्योर के बाद बेस्ट है। उसके बाद है सी मैन्योर, क्योंकि हमारे पास है सीज अवेलेबल नहीं है, समंदर पास में नहीं है। सीज में बहुत सारे किस्म के जो प्लांट्स हैं, उसमें जो यूजफुल प्लांट्स होंगे, वीड्स हैं, बाकी हैं, तो वो हम उठाते हैं, उनको भी ऐसे डिकम्पोज करते हैं, तो वो बन जाते हैं सी मैन्योर, उसको बोलते हैं। उसके बाद पोल्ट्री मैन्योर, जो हमारे पास पोल्ट्री एनिमल्स होते हैं, चिकन होती हैं और वो शीप होती हैं, उनका वो एक्सक्रीटा जो है वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है मैन्योर। वो तेज क्या तेज कोतरन हूँ रेक्ट सह तेज सह कुलन जल सह तमें क्वांटिटी मज त्राउन, या कॉकरन हज रेक्ट बॉयलर कॉकरन पन्न कॉकरन हज रेक्ट अत वन पोल्ट्री मैन्योर। सो दिस वाज अबाउट मैन्योर। उसके बाद फर्टिलाइजर जो हम डे टू डे यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स, खाद आने बाजार, खाद यूरिया अन बेन से पोटाश, बेन से DAP, वही होता है फर्टिलाइजर। दीज आर इनऑर्गेनिक केमिकल्स, वो फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, उसको वो इंक्रीज करते हैं एसेंशियल एलिमेंट इन द सॉइल। यानी यही ज़्यादा जो मशहूर है वो है NPK, पोटाश, नाइट्रोजन, पोटाश
اور فاسفیٹ اور پوٹاش نائٹروجن فاسفیٹ اور پوٹاش باقی جو ہے کیلشیم امونیم سائٹریٹ کیلشیم کھاتا ہے جو یوریا ہوتا ہے سپر فاسفیٹ ہوتا ہے اسی حساب سے باقی زنک ہوتا ہے کبھی کبھی تو وہ ہوتے ہیں فرٹیلائزرس کیا ہوتے ہیں فرٹیلائزرس یہ تو سپرے بھی کر سکتے ہیں یا ایڈ کر سکتے ہیں سوائل میں جیسے ہم کرتے ہیں گڈائش کریں کچھ تک کھاد تراؤ وہ ہوتا ہے ایڈ کرنا سپرے بھی کر سکتے ہیں نالج آف دا نیچر آف سوائل از اسینشیل بفور ایڈنگ اے فرٹیلائزر یہ کیا ہوتا ہے پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ سوائل کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے سوائل ٹیسٹنگ لیبارٹری میں چاہے وہ ہارٹیکلچر والوں کے پاس ہو چاہے ایگریکلچر والوں کے پاس ہو چاہے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں وہ ہمیں سوائل کا ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس میں کون سی کوانٹٹی کس حساب سے کون سا نیوٹرنٹ جو ہے کس حساب سے موجود ہے اگر یوریا زیادہ ہے تو یوریا نہیں ڈالنا ہے فاسفیٹ زیادہ ہے فاسفیٹ نہیں ڈالنا ہے اس حساب سے جس حساب سے کراپ ہے اس حساب سے وہ بولیں گے کون سا کراپ لگانا ہے یہ کراپ لگانا ہے پھر یہ کھاد ڈالنا یہ نہیں ڈالنا وہ نہیں ڈالنا وہ ڈالنا تو یہ ڈالنا ورنہ اس میں سالٹ زیادہ ہو جائیں گے تو کراپ نہیں بن جائے گا ہمارا اس کے بعد جو ہے اریگیشن پڑھنا ہے ہمیں کیا پڑھنا ہے اریگیشن جب ہم نے کراپ لگایا کراپ تھوڑا بڑا بھی ہوا تو ہمیں پانی دینا ہے اس کو ضرور یا اسی ٹائم یا اس کے بعد بھی وقت وقت پہ پانی دینا اس کو بولتے ہیں اریگیشن کیا بولتے ہیں اریگیشن واٹر تو ضروری ہے کس حساب سے ضروری ہے نیڈس آف ایواپریشن اوپر بہت دھوپ ہوتی ہے دھوپ کو بچانے کے لیے یا وہ واٹر ویپر ہوتے ہیں اس کو ورنہ تو پلانٹ ہی جل جائے گا وہ ایواپریشن کو بچانے کے لیے اور میٹابولک ایکٹیویٹیز میں فوٹوسنتھسس میں یہ ضرورت لگتا ہے اور نیچے بھی واٹر جب بارش پڑتی ہے کہیں واٹر ہم ڈالتے ہیں تو وہ نیچے چلا جاتا ہے زمین کی بہت تلے اس کو بولتے ہیں سوائل سی پیج بھی لاسٹ ہوتا ہے ہمارا جو دان کا فصل ہوتا ہے وہ ہافلی امرسڈ نیصف آسان آبس تل تھاون واریاہس کالس تو وہ اریگیشن نیڈ ہے وقت وقت گژھِ اریگیشن پلانٹ دِنۍ کُس قٕسم آسہِ اَدٕ چھِ فصل بنان زیادٕ آب آسہِ تیٚلہِ گژھِ ڈِکمپوز تیٚلہِ گژھن سالٹ زیادٕ پوٚز تیٚلہِ گژھِ خراب موٗل زیادٕ آب تہِ ہٮ۪کو نہٕ دِتھ کینٛہہ کم تہِ ہٮ۪کو نہٕ دِتھ کینٛہہ یہِ چھِ پتہ آسان یہِ چھِ آسان بوٚنمُت ایکسپوٹو یا سانہِ زِٹھٮ۪ن چھِ پتہ آسان کہِ کُس حساب چھُ کوتاہ آب چھُ دیُن چلو دِس واز اباؤٹ مینیورس اینڈ فرٹیلائزرس فی امان اللہ